Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 3.2. Before exercise 3.2 we will see the definition of logarithm. What is the definition of logarithm? Let's see. Let a, x, y be real numbers such that a greater than 0 is not equal to 0. If x is equal to a raised to the power y means class ये हमारे पास given है कि let's suppose a x जो है हमारे पास given है a raised to the power x, then the logarithm of x we have, wait a minute, we say that logarithm of x is base a is y and is written as, okay, class जब हम इसको logarithm के साथ लिखेंगे means the log of x हम इस तरह लिखेंगे. Let's suppose because we are studying about the logarithm and this is the chapter consists of logarithm log values. So ये जो चीज़ है ना इस तरह से बराबर हो जाएगी when we take the log on both sides. Log x is equal to log a पावर y. तो इसका जो है ना ये इस तरह से लिख दिया जाएगा. इट फॉलोज दैट x इज इक्वल टू ए वाई. ये हम इसको कन्वर्ट किस तरह कर देते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म स्टेटमेंट एज सेम. इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर इसके लोगैरिथम फॉर्म जो होगी ना x की वो इस तरह से बन जाएगी. ये यहाँ पर जो बेस है इसकी ये वाली जो बेस है ये लॉग के साथ यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी, राइट. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. ये देखिए हम दोबारा से इसको ये देखिएगा यहाँ पे इस तरह से. अगर हम फिर इसको कहेंगे कि हम लोगैरिथम निकाल रहे हैं x का तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो बेस है ये बेस किसकी पोजीशन पे आ जाएगी, लॉग के साथ अटैच हो जाएगी. x जो है इसके साथ यहाँ पर लॉग के साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू जो पावर है वो क्या आ जाएगी, बेस बन जाएगी. यहाँ पर इस तरह से लिखी जाएगी. लाइक लेट्स सपोज अगर मेरे पास इफ आई हैव अ क्वेश्चन लाइक 5 is equal to let's suppose no I am giving you a is equal to 5 raised to the power 2. तो इसकी लोगैरिथम फॉर्म पता है क्या होगी, इसकी लोगैरिथम फॉर्म होगी, लोगैरिथम फॉर्म हम इसकी इस तरह से लिखेंगे log. अब ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे जब when we have question given like find the logarithm, write the logarithm, write this term in logarithmic form. क्या आप इस सवाल को logarithmic form में कन्वर्ट करो. हम कैसे लिखेंगे, log ये जो बेस है इट कम इन सबस्क्रिप्ट पोजीशन, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से. और ये जो a लिखा हुआ है ये हम we will write it as it is equal to 2. Is there any confusion class? No. Hello students, can you hear me? Yes. यहाँ तक clear है? Yes. Okay, this is logarithm form. Logarithm form कहलाता है ये किसी भी term की. Okay, let's see through the help of example. Let's we have question 81 is equal to raised to the power 3 is equal to 3 raised to the power 4. 81 is equal to 3 raised to the power 4. Write it in the logarithmic form. इसकी logarithmic form क्या होगी, log ये सबस्क्रिप्ट पोजीशन कहलाती है. ठीक है, ये जो नीचे एक ऊपर लिखा होता है पावर में, क्लास ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन बेस इज रिटन लाइक ओके मैं इसको जरा यहाँ पर लिखती हूँ मिड में ताकि ये पोजीशन क्लियर हो. बेस इज रिटन विद 2 टाइप्स, 2 मेथड से लिखी जाती है. लेट्स सपोज अगर बेस पावर अपर है, अपर पोजीशन पर है तो दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन. ऊपर लिखी जाती है तो हम इसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट. ओके, ये ऊपर लिखी जाएगी.
और अगर बेस लिखी जाएगी नीचे तो ये लिखा है, ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट पोजीशन. ओके, दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. as you can see on the screen, this is called subscript, जो हम नीचे करके लिखते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट. यहाँ तक क्लियर है आपको पावर्स की पोजीशंस का? दीज आर द पोजीशन ऑफ पावर्स. सो इन logarithmic form, right hand side base will come in subscript position with log, and 81 we will write as it is equal to power become base. Here you can see that. यहाँ तक कोई confusion है class? No. Okay. So let's see the question number, example number 2. Since 10 is equal to 10 power 1, 100 is equal to 10 power 2, 1000 is equal to 10 power 3, 1000 10 की power 3 होता है, 100 is the power of 100 is the square of 10. So therefore, and so on, therefore log 10 of 10 is equal to 1. Means class, when we have, listen to me very carefully, this is very important note. When we have log and subscript position, you have 10 means and 10. ये देखिए यहाँ पर नीचे भी 10 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ पर बेस भी आपके पास 10 है. जब ये दोनों सेम होते हैं तो आंसर हमारा क्या हो जाता है? 1 हो जाता है. लाइक when we have same power in subscript position like a, और यहाँ पर भी a लिखा हुआ है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा क्लास? 1 हो जाएगा. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि a रेज टू द पावर 0, अगर जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है? 1 के. इन द सेम वे लॉग में ये चीज इस तरह से इक्वल होती है. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? No. Okay. For example, okay, now let's see further. For example, 1 square is equal to 1. मतलब जो हमें पता है कि उसके आंसर 1 की पावर 1 क्यूब 1 मतलब 1 को आप जितने टाइम एक्सपेंड करेंगे आंसर विल बी 1. So y may assume any of the values 1, 2, 3, 4. The condition greater than 0 ensure that x is always real. अच्छा, if x is 1 then 1 is equal to a0. मैंने अभी आपसे कहा कि जिस तरह हम कहते हैं कि एनी बेस विच हैज रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1, जिस तरह किसी भी बेस की पावर 0 हो जाती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के. ओके, यहाँ पर एक तो ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये. और दूसरा पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब व्हेन वी हैव सुपरस्क्रिप्ट पोजीशन है, यहाँ पर व्हेन वी हैव लॉग रिटन विद 1, जब हमारे पास log 1 लिखा होगा इस तरीके से, तो ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है. लाइक राइट क्लास? मीन्स के 1 इसका क्या होगा? जैसे ये देखिए 1 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 0. व्हेन वी हैव क्वेश्चन इन दिस फॉर्म, मतलब जब हमारे पास किसी की पावर 0 गिवन होगी तो फिर वो क्या हो जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा, log x ये इसकी पोजीशन में आ जाएगा नीचे, 1 इसके साथ लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? No. में अगर कोई कंफ्यूजन है आयशा और हुरबानो तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे. मिस जी, मिस ये पूरा लिखना है या फिर ये जो दो आपने बताया बस वही लिखना है? मतलब आपको अभी सिर्फ नोट करना है, जस्ट सी. हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा. ओके, so here we concluded that logarithm of 1 हम इसको इस तरह पढ़ेंगे क्लास. how to read this term? logarithm of 1 to any base is 0. मीन्स के logarithm of 1 यानी कि log of 1 लिखा हुआ है और उसकी जो भी बेस होगी वो हमेशा किसके साथ क्या होगी? 0 होगी, राइट? एंड logarithm of the base to itself is 1. मीन्स here I can give you the example. ये देखिए ये रहा logarithm of base to itself, यानी कि जो भी बेस है और जो भी इसके साथ पावर है, ये क्या है? यानी कि ये जो बेस है और ये जो यहाँ पे logarithm of a दिया हुआ है, जब ये सेम होंगे तो ये किसके बराबर हो जाता है? 1 के. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? नो में Okay, let's see further examples. Further examples we have
Okay, example number 1. Example number 1, write the logarithm following in logarithm form. आपको ये logarithm form में लिखना है, जैसे कि you can see on the screen. हमने इसको logarithm form बनानी है. logarithm form में हमारे पास क्वेश्चन ये है 2 raised to the power 2 is equal to 4. हम यहाँ पे logarithm लिखेंगे और ये जो base है that will come in the subscript position और is log of 4 base 2 is equal to 2. यहाँ तक कोई confusion है class? No. Okay, this is the method of logarithm form. Write the method. This is the method to return power form in logarithm form. ये logarithm form को लिखने का तरीका है. Means के अब ये देखिए we can do it by ourselves also. ये देखिए अब हम यहाँ पे ये खुद solve कर सकते हैं. Just a second. Wait. अच्छा 4 raised power 3. 4 raised power 3 is equal to 4. ये यहाँ पे mistake है. 4 raised power 3. Let's suppose अगर मेरे पास है 5 raised power 2 is equal to 25. तो हम ये किस तरह लिखेंगे? हम ये इस तरह से लिखेंगे, मतलब जो है ये log, यहाँ पर ये हम इस तरह लिख देंगे, जो बेस है पावर है ये यहाँ आ गया, log of 25 is equal to 5. Right class? यहाँ तो कोई confusion? No. Okay, let's see next question. Next example we have, write the following in exponential form. यहाँ पर आपको vice versa किया हुआ है. Vice versa mean ऊपर आपको यहाँ पर आपको you have given question in logarithm form. आपको इसको किस में करना है? Exponential means power form में करना है. जैसे कि यहाँ ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ था, आपने इसको किस में कन्वर्ट किया? लोगैरिथम में. इन द सेम वे क्वेश्चन इज गिवन इन रेसिप्रोकल फॉर्म, यानी कि आपको लोगैरिथम में दिया हुआ है, अब आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लाइक दिस, वेरी इजी. ये देखिए अब हम इसको किस तरह करेंगे? ये देखिए जो लॉग के साथ लिखा हुआ है वो ये देखिए बेस वी विल राइट एज इट इज, और जो लॉग की पावर बनी हुई है ना दैट विल कम द पावर ऑफ 3. बहुत आसान है ये. अब ये देखें नेक्स्ट, ये 10 पावर 100 है ना, 100 वी विल राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड log of 10 become the power of 2. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No. डन? Miss, बोलिए. exercise 1 की उसकी 3 और 2 3 और 4 पार्ट. एक सेकेंड क्लास, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है. नो नहीं, ये मैंने गलत किया है. वेट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये होगा कि ये जो पावर, ये पावर नहीं होती, सॉरी, ये बेस होती है. राइट हैंड साइड पे ये बेस है और ये पावर होती है. इट कम इन द पोजीशन ऑफ पावर. ओके, लाइक ये देखिए 4 इज इक्वल टू, ये जो 1/2 लॉग के साथ अटैच है, ये वी विल राइट इट लाइक दिस, एंड इसकी जो होल पावर है वो क्या है? -2. यस उर्बानो, व्हाट आर यू आस्किंग नाउ? आस्क मी. आप बताइए क्या कह रही हैं आप? एक्सरसाइज 1 है. हाँ, यस, 4 पार्ट भी करना है ना? ऑब्वियसली करने. आपने नहीं करवाया तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. उसमें कोई कंफ्यूजन है? यस मिस, 3 वाला एक बार आप समझा दें. ओके, पहले हम ये सॉल्व कर लें फिर हम वो करते हैं. ओके, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग यही सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बाद में करते हैं. बताइए सवालों के बाद. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी सॉल्व एक्सरसाइज. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 यू हैव गिवन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथम फॉर्म. वेरी इजी क्वेश्चन. लोगैरिथम फॉर्म में आपने जस्ट इनको लिखना है. as we saw the above examples, यहाँ पर हमने क्या करना है? इसको लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है. लोगैरिथम फॉर्म इसकी क्या होगी?
log क्वेश्चन नंबर 1 log यस क्लास जो बेस है इसके साथ ये क्या बन जाएगी, इसकी सबस्क्रिप्ट में आ गई log of 32 is equal to 5. This is the answer of first question. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो अच्छा नेक्स्ट No, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आप बताइए मुझे, नाउ यू विल टेल मी क्या होगी log मिस लो log सब इसका आएगा -7 नो नो क्या होगा 2 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो ये बेस आती है log के साथ एंड 1 अपॉन 128 is इक्वल्स टू 2 -7, right? यस Okay, now question number 3 मिस log लो नहीं Minus- it's a log yes क्या log 10 हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन सब स्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे हम 10 10 वेरी गुड एंड बेस क्या होगी इसकी, यहाँ पे क्या लिखेंगे log of 0.01 very good 0 point इक्वल्स टू is equal to -2 very good. Okay, now tell me question number 4 log 3/2 log 3 upon 36 no log 36 of 216 very good is equal to 3/2. is equal to 3 upon 3/2 very good 3 upon 2. Okay, now class next last part of the above question. Yes class, log of 10 subscript position we will write 10 yes and then 150 1 lakh, it's a 1 lakh 1 Is equals to 5. 1 2 3 4 5 is equal to 5. very good. So I hope you have got it. अब आपको ये समझ आ गया होगा, understood? yes Okay, now question number 2 is vice versa of question number 1. Question 1 का जो है ना ये vice versa है, मतलब इसमें opposite करना है. You have given question in logarithm form and you will have to convert in question according to exponent form. हमने ये इसको exponent form की उसमें लिखना है form में, ठीक है? Now class question number 6 we have log of 25 log of 25 is equal to 2. हमने इसे किस तरह करना है convert? 5 की पावर 2 It become 5 raised to the power 2 is equals to 25 25. Very good. And when you open 5 5s are 25. ये इसके ही बराबर होते हैं. Okay. Now for question number 7. 27 Yes. Raise the power of 4/3 Very good. It becomes is equals to is equals to 81 आपको पता है ये प्रूफ भी होते हैं. प्रूफ कैसे होंगे? Just like 27 is the cube of 3. 27 किसका क्यूब होता है? 3 का. ठीक है? Yes. And here we have power. I am proving the question. अब ये देखिए, ये यहाँ से ये से कैंसिल हो गया and 3 power 4 means multiply 3 4 time by 3. 3 को 3 से 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें. ये जो है ना ऐसे ही नहीं दिया हुआ, मतलब ये प्रूव होता है. इसका मतलब ये that we are solving right now. 3 is 9, 9 3 is 27, 27 3 is 81. That's why 27 raised to the power 4/3 is equal to 81. यहाँ तक समझ आया? जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. Are you getting my point, students? Okay. Next question we have. Wait a minute.
क्लास क्वेश्चन नंबर 8 इज मिसिंग। 8 को बाद में सॉल्व करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 10 raised to power of 0. 10 10 10 power 0 is is equal equals to 1. plus 1. as I told you before कि when any base has raised to the power 0 it always become 1। किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो किसके बराबर होता है? 1 के। 1. 1 एंड देन क्वेश्चन नंबर 10 and 10 raised to the power of 3 minus 3. minus 3 10 minus power minus Raised to 3 minus of minus 3. is equal to 0 0 0.001 001 मीन्स जब किसी बेस की पावर माइनस में होती है, हम एज वी स्टडीड इन एक्सरसाइज 2.6 में हमने पढ़ा था ना कि व्हेन एनी बेस हैज माइनस पावर वी विल टेक द रेसिप्रोकल, मतलब हम इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे, इट बिकम पॉजिटिव। ये देखिए सर, ये इसका मतलब ये इट बिकम पॉजिटिव। और 110 पावर 3 का मतलब होता है 1000। आप ओपन किया 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, इट बिकम 1000। और जब आप व्हेन यू डिवाइड 1 बाय 1000 तो आंसर हमारा 0.001 आएगा। गॉट इट क्लास? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? no Okay, now see the question number previous exercise, तो question number 13। आप क्वेश्चन नंबर 13 का कह रही थी मुझसे उर्बानो? no मिस एग्जांपल जो 1 थी ना, आप मुझसे एक्सरसाइज 3.1 का कह रही थी। यू आर no आस्किंग। मिस जैसे हमने क्लास शुरू की थी, इसमें एग्जांपल 1 नहीं पढ़ी थी जी, ना इसका मिस 3 क्वेश्चन 3. उसमें आपको क्या प्रॉब्लम था उर्बानो? इसको आपने ना वो एक बार समझाया नहीं था, वो अकाउंट वाला था का। एक सेकंड, रुकिए मैं देखती हूँ आप किसकी बात कर रही हैं। लेट्स सी, एग्जाम्पल नंबर 1 में। 2 1 yes मिस 1 हाँ जी, कौन सा वाला? विच पार्ट? मिस ये 3 वाला। वेरी इजी क्वेश्चन। इसको आपने लोगैरिथम फॉर्म में लिखना है। तो यू विल राइट, बताइए क्या होगी इसकी लोगैरिथम फॉर्म? log 4 1 Raised to the power of 1 upon 6. 16. is equal to 3. minus is equal to -2। 2. ओके, यही तो करना Yep. था। व्हाट्स अ बिग डील? आगे समझ उर्बानो, समझ आ गया? ओके, यस यस नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। वी हैव ओके क्लास, अब हमने सॉल्व किया यहाँ तक कि जो है हमने सीखा, वी लर्न दैट हाउ टू कन्वर्ट एक्सपोनेंट इनटू लोगैरिथम फॉर्म एंड लोगैरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट से लोगैरिथम और लोगैरिथम से एक्सपोनेंट फॉर्म किस तरह करते हैं। नाउ एग्जांपल 3 यू कैन सी, you will find out the value of x if you have given, सॉरी यहाँ पर अब आपको बेस जो है log of x, आपके पास x क्या है? अननोन है। अननोन है तो हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि हम पहले के फर्स्ट वी विल टेक logarithm फॉर्म कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म में। एज यूजुअल वेरी इजी, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। 7, ये एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी क्या हो गई? 7 पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 का भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था ना, तो ये वो है। यस हमने लोगैरिथम फॉर्म को कन्वर्ट किया एक्सपोनेंट फॉर्म में एंड देन 7 7s are 49, this is the answer of x। is there any confusion? नो Now let's see No, miss. question number, example number 4। example number 4 we will solve it by ourselves। question is given in our logarithm form like log of a, we have given question log of a 625। okay, no,
I am giving you question another form like अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ log, क्योंकि पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो ये डिफरेंट हो जाएगा. log of 8 y is equal to 2. Yes class. अब आप मुझे 8 बताइए. की पावर 2, 8 की पावर 2 is equals to y. Convert it into exponent form. 8 raised power 2 is equal to y. Now tell me the answer of y. Y is equal to, yes class, answer क्या होगा? Miss 64. Very good. Answer will be 64. Aisha, any confusion? Miss 64 कैसे? 8 8 the Okay. right class? मतलब Yes, power का Yes. मतलब होता है कि expand the number by itself according to the power. Okay. Now see the question number 3. Of exercise 3.3 3.2. हम 3.2 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. जस्ट अ सेकेंड, लेट कम ऑन एक्सरसाइज. ये 3.2 हमारे इज इन फ्रंट ऑफ अस. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.2 का. नाउ कन्वर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 11. Convert the logarithm form in exponent form. Exponent, what will be the exponent form of question number 11? Question number 11 की exponent form बताइए. 32 power 1 upon 5 is equals to x. X I will write on the left hand side because it is unknown. Okay, मैं unknown को वहाँ पे लिख रही हूँ. और 32 power minus 1 upon 1 5. upon 5. क्लास यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? No miss. Miss ये x को अपन x को साइड भी लिख सकते हैं ना? Yes, कोई मसला नहीं है, no problem. So here we have power is in negative form. First we will make the power positive, so we will take reciprocal of the base. It become positive. यहाँ तक कोई confusion class? No. And you know 32 is the power of 2. When you multiply 2 by 2 5 times, जब आप when you through the help of LCM, आप LCM ले लीजिए 32 का, आपके पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 5 टाइम. मतलब जब आप 2 को 2 से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इन प्लेस ऑफ 32 आई रॉट 2 पावर 5. यहाँ तक क्लियर है? Yes. ओके क्लास. अब यहाँ पे क्या होगा? 2 5 कैंसिल फ्रॉम 5 and x we have 1 upon 2. ये हमारा आंसर है. डन? क्लियर है? Yes, Miss. ओके. क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी 12 का आंसर बताइए क्या होगा? एक्सपोनेंट फॉर्म. टेल मी द एक्सपोनेंट फॉर्म. Miss 4 x is equals to यस. ओके, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे we will write x is equal to 4 power minus 3 upon 2. Aisha, are you getting my point? Yes, Miss. Very good. Now tell me the further next step. Power is in negative sign. Power is negative form में क्या करेंगे आप? इसको 4 upon 1 upon, take the reciprocal. 1 upon 4. Because power become positive. 3 upon 2. Next step class. How to simplify? अब क्या होगा? मिस 4 को 3 टाइम करेंगे, Wait a 2 minute. टाइम करेंगे. Yes class. अब बताइए जल्दी से. मिस 4 को 3 टाइम करेंगे और फिर 2 टाइम करेंगे. 4 को 3 टाइम करेंगे? No, Urbana, no. It is in fraction form. पावर में फ्रैक्शन फॉर्म में we will simplify 2 power 2.
2 की पावर 2 हमारे पास क्या होती है, 4 होती है, राइट। एंड देन आउटर पावर होल पावर वी हैव 3/2। अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। इट बिकम Yes. 1/2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब क्या है क्लास, यस 2 को 3 आंसर। टाइम करेंगे। 2 2 2 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 2 is 4, 4 2 is a, 8. this is the answer. Done? Yes. Any confusion? No. No. Very easy exercise. Okay, question number 13 you can do it by yourself. Okay, ये आप खुद करेंगे. Question number 14. Yes class. 14 का आंसर बताइए. Find first, convert the logarithm form into exponent form. अब हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है ये. लोगैरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट में कर दिया, लाइक 3 इज इक्वल टू Y. a 1/2. ठीक है, ये लोगैरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर ये आया. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? No. No. आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट? वी जस्ट कन्वर्ट द logarithm form into exponent form. So here now base is unknown and base has power. अब base के ऊपर जो भी पावर होगी हम उसको ऑपोजिट लेंगे. मीन्स वी हैव पावर 1/2. 1/2 को फिनिश करने के लिए, 1 करने के लिए क्या लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड. हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जो अननोन होता है उसके ऊपर जो भी पावर है उसको ऑपोजिट ले लीजिए आप. रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा क्लास, 2. It's a square. Okay, I am applying square on both sides. This is reciprocal. अब 2 से 2 क्या हो गया, we cancelled out, so it become power 1 and 3 power 2 is 9. This is the answer of our question number 14. यहाँ तक clear है? Yes. Any confusion? No. Okay. And question number 15. 15 को हम further solve करते हैं. 15 में क्या है क्लास, 1/25 A is equals to A. is equals to A minus 2 power minus 2/3. Yes class, take the reciprocal of the power which is on the A. A के ऊपर जो भी पावर है उसका हम क्या ले लेंगे क्लास, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब जो अपॉन में वो मतलब 3/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर. आई एम रीअरेंजिंग द वैल्यूज लाइक दिस. अब हमने इनका रेसिप्रोकल लेना है. यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं टेकिंग -3/2 ऑन बोथ साइड. हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले रहे हैं. जैसे हाउ कैन वी टेक रेसिप्रोकल लाइक दिस, क्योंकि हमें जो भी अननोन बेस है उसको 1 करना होता है. एंड आई एम टेकिंग हियर एज लाइक दिस -3/2. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास, इज इक्वल टू 1/25. 25 किसकी पावर होता है, 5 की पावर 2 होता है, राइट. एंड रेसिप्रोकल इसका क्या है, -3/2. ये क्लास पावर्स हो रही है यहाँ पे इसमें रेसिप्रोकल लाइक दिस. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्लास? No. No. कैंसिल, और 3 से 3 कैंसिल एंड माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर here 2 cancel from 2. So answer we will have 5 minus 3. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? देखिए इसको एक दफा, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं. अब ये देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले आएंगे, साइन चेंज हो जाएगा और इसका आंसर हमारे पास आया 125. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? ये सॉल्व हो गया. No. डन. Yes. यस आयशा, आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, miss. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व लास्ट क्वेश्चन.
अब हम क्वेश्चन 16 यू विल डू इट बाय योरसेल्फ. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें आपके पास अननोन, डोंट वरी, जस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट द, ये भी लोगैरिथम फॉर्म में, जस्ट कन्वर्ट द वैल्यूज इन एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या करेंगे इसको हम, क्या होगा आंसर, -25 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 power y. This is the exponent form of question number 17. यहाँ तो कोई confusion? No, ma'am. No. Okay. Now here class, अच्छा, -25 we will write as it is. And here root की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2. ओके, और हमारे पास y भी पावर में है. अब -5 क्या है, स्क्वायर होता है 2 का, 5 का. नाउ y वन जा 5. y अपॉन 2. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्लास? No, इन ma'am. अबव क्वेश्चन में बेस अननोन थी और हमने उसको सॉल्व किया था, और मतलब बेस को सॉल्व किया था. अब आप देखें इन क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19, बेसिस आर सेम एंड पावर्स आर अननोन. तो हम क्या करेंगे, अब आप देखें बेस सेम है दोनों तरफ, तो वी विल कंपेयर द पावर्स. हम क्या करेंगे, पावर कंपेयर करेंगे. राइट क्लास? Yes. कंफ्यूजन? तो हियर No. अब हम यहाँ पर ये करेंगे, टू कंपेयरिंग, आई एम कंपेयरिंग द पावर्स. क्लास माइनस जो है ना, ये इसके साथ हम लेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, ये हम बाद में सॉल्व करते हैं. अच्छा, अभी हम 5 माइनस को इग्नोर करते हैं. क्लास यहाँ पर ये देयर इज मिस्टेक इन क्वेश्चन, अभी हम इसको रहने देते हैं, ठीक है. अब देखिए क्लास, हमने यहाँ पे कंपेयर किया पावर्स को, एंड देन क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है, बेस हमें गिवन है, पावर अननोन है. y की वैल्यू निकालनी है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, Multiply. इट बिकम 2 2 जा 4. 4. डन. क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए. पहले हम इसके एक्सपोनेंट फॉर्म बनाएंगे. एक्सपोनेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग 10 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 पावर y. ये देखिए, अब 100 किसका स्क्वायर होता है, वी नो दैट 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. 10 10 जा 100. हियर वी हैव 10 पावर y. वी विल राइट एज इट इज. ये हम एज इट इज लिख रहे हैं. नाउ यू कैन सी दैट बेसिस आर सेम, तो कंपेयर द पावर्स. पावर कंपेयर हुई, यहाँ पर लिखिएगा जरूर प्लीज, कंपेयरिंग द पावर. 2 इज इक्वल टू y. ये देखिए, ये हमारा आंसर आ गया. एमसीक्यूज फॉर्म में आते हैं ये क्वेश्चंस. डन क्लास? Yes. एंड क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आप, हमारे पास क्या होगा, 55 इज इक्वल टू 55 y. मीन्स यहाँ पे क्या आंसर है, 1. तो y का आंसर, अब बेसिस आर सेम, कंपेयरिंग द पावर्स, y इज इक्वल टू 1. डन क्लास? कोई कंफ्यूजन यहाँ पर क्लास? कोई कंफ्यूजन? हमारे पास आधा मिनट भी नहीं है, जल्दी बताइए. नो कंफ्यूजन? ओके, देन इट इज एंड ऑफ. ओके क्लास, आई एम गोइंग